All right, so good afternoon, everyone. I hope that you all are doing good. And I can't believe we have finally reached to the last class of our CVT course. It actually felt like I've known all of you since so long. And during this month, I believe that it was my privilege as well to not just to teach, but to learn and to grow alongside with all of you. And I'm sure that whether you were here for your personal development or for your professional development, I'm sure that now you are familiar with the most powerful evidence based approaches in psychology, which you would be definitely implementing in your professional life as well as, in your real life as well. All right, let me share the screen. All right, perfect. So today we will be talking about CBT for specific disorders because in the last few classes I think we have talked about different disorders as well, but it was very generic. So today I will be focusing on each of the disorders. This may I have mentioned about we will be discussing how these models can work on the key psychological disorders such as depression, anxiety, OCD, panic disorder, एंड उसके बाद आई थिंक मैंने और भी इसमें ऐड ऑन किए आई एम नॉट श्योर लेट मी सी उसके अलावा आई वुड वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग दैट हाउ वी कैन बेसिकली इम्प्लीमेंट these strategies as well and to recognize the clinical challenges that we experience when we are implementing because in my personal experience when we were learning about CBT it was very different when we started implementing. So I'm sure abhi aap log theory se पढ़ रहे हैं, but once you would start implementing these things, you would notice a lot of change. You would notice a lot of growth in you. Okay, it's different when it comes to implementation, and you also have to adjust according to the client that you are meeting. So whatever techniques that you have learned and you are learning, make sure to add in your style as well. आपका अपना एक specific style भी होना चाहिए, and you have to add that because that makes the beauty of CBT that every therapist has their own way of implementing and applying these techniques. All right, let us begin. So I'll be talking about depression, anxiety, OCD, PTSD, not eating disorder or substance abuse. I've not added that. I have added panic disorder, generalized anxiety disorder. We'll see about it. All right. All right. So we are going to begin with the most common condition and most commonly जिसपे CBT used होती है, that is depression. Now, when we were talking about, when I was telling you about CBT, definitely I was giving a lot of examples regarding depression or anxiety. So I'll just brief you guys about these techniques. But during when I'm telling you, if there's any question that you want to ask, or if you want me to repeat any technique, let me know. I would be happy to do that as well. All right, so these are the basic techniques that we use for depression. जिसको I have divided. I wanted to look for the picture जहाँ पे clear differentiation हो, but वो मुझे मिली नहीं. But I am telling you guys कि इसको इस तरह से differentiate करें, and you can make notes about it as well. So the first one is cognitive techniques. All right. I'm sure you all are aware about depression, that it's a cycle of negative thoughts, and when you are facing depression, you have reduced activity, you feel low all the time, you there's a lot of withdrawal in your symptoms. So we are going to break all these symptoms into two major categories, that's cognition and behavior, because CBT falls into these two categories. So first we will be talking about cognitive techniques, which we have already discussed, but let's take it as a summary or as a recap. The first one is thought records, as you can see. इसी में साथ आप add कर ले cognitive reconstructing. These two are major cognitive techniques that we use that helps the clients to basically identify their negative thoughts, to challenge their negative thoughts, and to reframe them into positive ones. For example, if there's any client who says that I'm a failure and I cannot do anything in my life, CBT basically guides them to change that thought
from I'm a failure to I'm struggling right now, but that does not make me a failure. ठीक है? Thought records, cognitive reconstructing का मैंने आपको बताया. Now, there's another technique that also falls under cognitive techniques. That's fact checking, as you can see on number 5. Fact checking and ABC analysis. ये दोनों भी cognitive techniques के अंदर आती हैं, which basically used to evaluate the evidence. जहाँ हमने evidence की बात की थी, if you guys remember, जिसमें हम for and against बात करते हैं, the negative beliefs अगर उनका कोई है, तो what's the evidence behind it? How which statement supports this thought? So fact checking and ABC analysis are those techniques that basically promote balanced thinking. All right, clear so far? Then we have behavioral techniques, जिसमें हमारे पास आती हैं behavioral activation. That is, as you can see over here, इस पे मेरा माउस नहीं चल रहा. Behavioral activation आप सबको नजर आ रही है on the first image. Behavioral activation क्या है जी? It helps you to engage in rewarding activities which we have already discussed, and साथ ही activity scheduling at number 2, as you can see. यहाँ पे इस तरह के थोड़ी मिक्सअप हुए हुए, मुझे नहीं कोई इस तरह की पिक्चर मेरी, इसलिए आई एम क्लियरिंग इट फॉर यू. यू कैन मेक नोट्स अकॉर्डिंगली. बिहेवियर टेक्निक्स में आती है बिहेवियर एक्टिवेशन, एक्टिविटी स्केड्यूलिंग. These both techniques, they basically about reintroducing some activities in your life that can help you to break the cycle of avoidance, that can help you to stay motivated. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? बिहेवियरल एक्टिवेशन एंड एक्टिविटी स्केड्यूलिंग की मैं बात कर रही हूँ. Then there's another technique that also comes under behavioral techniques, that is successive approximation or breaking it down at number 6, as you can see. This helps the clients to basically tackle all those activities that are overwhelming for the client. हम उनको ये सिखाते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गई है, यू कैन मैनेज दोस टास्क इनटू सिंपल स्टेप्स एज वेल, इनटू मैनेजेबल स्टेप्स एज वेल. बिकॉज जब हमारी मोटिवेशन लो होती है, एनर्जी लो होती है, तो हमें हर टास्क बहुत मुश्किल लग रहा होता है. सो वी गाइड देम टू ब्रेक देम इनटू स्मॉल स्टेप्स एंड देन स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स. वन बाय वन आपने इनको करना. ऑलराइट, ओके. Then we have other techniques that basically focuses on journaling. आपकी journaling उसमें आ जाएगी, आपकी self monitoring, relaxation and mindful meditation. These activities, it helps the client to increase self-awareness and to regulate the level of stress that they are experiencing. Because जब depression होता है, they are more likely to experience anxiety as well. So it's important to always add these relaxation, mindful techniques into their daily life activity. Self-monitoring is basically when you have to track your thoughts, your mood, your behaviors, because आप हमेशा note कीजिएगा कि जो depression और anxiety का client है, they have a pattern. There's a very fixed pattern, very common pattern that they go through. So when you self-monitor your own thoughts, your behaviors, you can identify that pattern as well. And then finally comes role play and behavioral experiments. Behavioral experiments and role play भी आप behavioral techniques में भी add on कर देंगे, वही उन्हीं दोनों की category में आती है, जिसमें you allow the clients to basically test. जिससे पहले हमने बात की सिर्फ evidence की. We only take evidence, we only ask for the evidence. In behavioral experiments, we are actually asking them to test their belief in real life as well. ठीक है? For example, if there's any client who says कि मैं अगर किसी friend को call करूँगा या मैं किसी से help लूँगा, so they are going to ignore me. So what we ask them as a therapist, we ask them to actually do that. Let's call them and see what happens. ठीक है?
And if they ignore, we tell them to reframe your thoughts. Maybe the other person is busy. Maybe they will call you back. And if they actually pick up their call, तो वो जो he or she will ignore me वाली thought खत्म हो जाती. So these are the, आप समझ लो ये पूरा map I've played it out in front of you, that if you see a person with depression, you would know कि मैंने इसके साथ क्या करना है, अगर CBT यूज हो रही है तो. And always know that there's no single technique that works for everyone. Okay? As a therapist, I believe that it's your duty, it's your role to collaboratively tailor these tools to fit जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपके पास मिलती है. पहले तो आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बैकग्राउंड हिस्ट्री लेते हैं, उसके गोल्स लेते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क ऑन इट. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम CBT? Anything that you need to clarify, anything that you want to share? Chale, I'll move forward then. All right, now let's look how CBT is basically applied to generalized anxiety disorder. अच्छा, पहले तो मुझे who would like to tell what is generalized anxiety disorder? Unmute yourself. Tell me, what do you know about GAD? When you start worrying about every single thing in your life, or specifically it's not just worries, आप इतना इतना उसके बारे में सोचो, इतना ज़्यादा उसके बारे में वरी करते हैं कि it starts affecting your daily routine, और उसके टास्क कंप्लीट करने में भी आपको मुश्किल होने लगती है, क्योंकि the worries and the agitation and the palpitations, they get the best of you, और आप you are left नॉन वर्केबल पोजीशन, आप मतलब कि काम नहीं कर पाते, आप बिल्कुल ही नम हो जाते हैं. बिल्कुल सही, perfect. So to summarize it or to make it simplify, it's basically it's a persistent, excessive worry about everyday things. ठीक है, आपका वर्क हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली है, आपकी हेल्दी है, हर चीज में दिस कंटिन्यूस बेचैनी है, आपको मसल टेंशन है, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग बिकॉज यू आर जस्ट योर माइंड इज एवरीवेयर एट वन टाइम. एक टाइम पे हर जगह आपका दिमाग है एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी सिंगल थिंग. ठीक है, अब फोबियाज के साथ आपने डिफ्रेंशिएट रखना है, बिकॉज फोबिया में एक ही चीज को लेके यू आर स्पेसिफाई, और जनरलाइज में जैसे नाम से पता लग रहा है तो इट्स वेरी जनरलाइज, इट्स अबाउट एवरी सिंगल थिंग. ठीक है, ऑलराइट. किसी ने चैट बॉक्स में भी कुछ लिखा हुआ है, लेट मी सी. Anxiety, about anxiety, extreme overthinking about future, extreme overthinking about anything, Aksa, about your past, about your present, about your future, about your health, every single thing aapko, you're overthinking about it. Excessive and uncontrollable worry. Okay? It's uncontrollable worry. You just cannot control the level of worry that you experience. अच्छा, अब इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट CBT अगर हमें करानी है ऐसे क्लाइंट के साथ, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इज टू हेल्प योर क्लाइंट आइडेंटिफाई देयर वरी ट्रिगर्स. उनके क्या क्या ट्रिगर्स हैं. As I saying in first session, I shared that I had GAD. I lived with it for years before getting proper help. Thank you so much, Risa, for sharing that with us again. And I can completely understand how difficult it must be. Risa, आपने therapy ली थी or you managed on your own? No, I was in therapy. I was on medication, and I was under therapy. I shared basically वो CBT ही, I went for CBT and I shared that कि वो किस तरीके से just one session helped me a lot. मतलब कि I took multiple sessions, but my breakthrough was that one session. जिसके अंदर That we is, were doing the Socratic method, Socratic questioning जो होती है, उसके through I was like it got really better. Now I don't have it anymore. I don't worry about those things too much now. okay, perfect. Thank you for sharing that, Risa. We are all proud of you. Thank you. All right.
So we have to first identify the worry triggers कि उनके क्या क्या triggers and that's causing them to worry. And what is the cognitive distortions behind them. ठीक है, अगर कोई client है जो for example is continuously worrying about the job, is worrying about losing their job, they have constant fear about it कि अगर मैंने कोई गलती एक भी मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो आई गेट फायर, अगर मैं फायर हो गया तो फिर क्या होगा, वही हम बात कर लेंगे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग की. What will happen if you get fired? If I get fired, I won't be able to support my family. If you won't be able to support your family, then what's going to happen? हमने बेसिकली उनका एक पैटर्न, वो डिस्टॉर्शंस जो है ना उनके आइडेंटिफाई करने होते हैं. And CBT basically helps them with the help of cognitive restructuring. CBT helps them कि क्या basically वो core factor है जो उसको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है, जिस पे most likely it's linked with their self-esteem. If I will not do anything, I will think less of myself. They attach their self-esteem with external rewards, with external things around them. हमको उनको कोर थॉट पता चल जाती है, फिर हम उनकी कोर थिंकिंग के ऊपर वर्क करते हैं. एंड दैट्स हाउ द एंजाइटी एंड द वरीनेस इज आल्सो रिड्यूस्ड. देन वी आल्सो टीच देम हाउ टू स्टे रिलैक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. With the help of PMR, with the help of deep breathing, with the help of mindfulness, journaling, we teach them that you also have to learn to stay relaxed during this entire therapy and outside of therapy as well. Just give me a second. Shh, keep quiet. Okay, keep quiet. All right. And you also have to know कि अब जो relaxation की जहाँ पे बात करते हैं, there are a lot of people, there are a lot of therapists who have complaints or issues regarding this thing कि उनको हम कैसे relax करें या वो नहीं होते relax. So you ask your client, yeah, how do you feel after this relaxation exercise? How do you respond to these training? Do you like this exercise? ये नहीं पसंद तो दूसरी वाली कर ले. What exercises do they find helpful? What exercises are they resisting? Trust me, if you take these questions in your mind before applying any technique, during this procedure, it will help you to understand your client better. And if the more you understand your client, the more easy it will get for you to apply these techniques. Lastly, we have worry time technique. Where is this slide? Wait a minute. All right, as you can see, now this is my all-time favorite technique जो आप अपने ऊपर भी अप्लाई करें, और you can apply this to any person who you seem to be anxious or who you seem to be overthinking या बहुत ज्यादा जो worry करते हैं. इसमें क्या है, you basically have to set a schedule. आपने वरी टाइम टेक्निक में स्केड्यूल सेटअप करना होता है, एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक प्लेस, कि आपने शाम को 6 बजे डाइनिंग रूम में बैठ के ही चीजों के बारे में सोचना. 6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे के बाद नहीं. एक फिक्स टाइम आपने उनको दे देना है, एंड दे हैव टू स्टिक टू इट. All right. So as I was saying, कि you have to set a schedule for them. Fixed schedule आपने बनाना होता है. और उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर यू, बट आई पर्सनली रेकमेंड कि आप उनको टाइम दें. वो आपको पता है क्या टाइम बताएंगे? वरी टाइम, रात को 1 बजे. बट दैट्स देयर फेवरेट वरी टाइम. तो हमने टाइम ऐसा रखना है कि शाम का कोई टाइम हो जो उनके लिए हो कि अच्छा कब शाम होगी, अच्छा शाम हो गई तो आई स्टार्ट वरिंग अबाउट वट एवर थिंग्स दैट आई वांट टू वरी. Then you have to basically
guide them to capture those worries. Write it down. कोई भी थॉट आए उससे आपने एंगेज नहीं करना, बट राइट इट डाउन, जस्ट नोट योर वरी, दैट्स इट. ठीक है. देन यू हैव टू रिमाइंड देमसेल्फ, उनको आपने बताना होता है कि मेरे पास, जैसे अगर सपोज अभी 6 नहीं बजे, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग वरीड अबाउट समथिंग, तो वो आपसे पूछेंगे कि मुझे तो परेशानी हो रही, मैं अब क्या करूं. तब आप उनको ये कहते हैं कि आप ये सारी जो भी वरीज है इसको आप लिख लें, जब शाम के 6 बजेंगे तब भी आप इनको लेकर बैठेंगे. ठीक है. आपने इनको बताना है कि मैं इस चीज के बारे में शाम के टाइम वरी करूंगा, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे कहा है 6 बजे ही मैंने वरी करना. ठीक हो गया. एंड देन व्हेन द टाइम विल कम, दे वुड मोस्ट लाइकली बी फॉरगेटन अबाउट इट. वो अक्सर भूल जाते हैं जब एक्चुअली में टाइम आता है वरी करने का. और लेकिन फिर भी हमने उनसे कहना होता है कि 6 बजे आप बैठे और अब आप अपने आप से पूछें कि क्या ये चीज मुझे अभी भी वरी परेशान कर रही है, क्या मुझे इस चीज को लेके एक्शन लेना चाहिए कि मुझे इसको अब छोड़ देना चाहिए. ठीक है. ये टेक्निक ट्रस्ट में शुरू में नहीं समझ आएगी, ना करने वाले को ना कराने वाले को, बट ट्रस्ट में वंस यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दिस टेक्निक ऑन योर क्लाइंट्स, you will definitely see a very positive change. Then you have to basically also ask them कि आपने रिफ्लेक्ट करना है इसी पूरी एक्टिविटी को on every day. Once आपका 6 से 7 बजे का टाइम था, 7 बज गए, your time is finished now. Then you can actually go back and reflect कि हाँ मुझे सुबह से परेशानी होती रही थी, लेकिन जब टाइम आया तो मैं भूल चुका था उस टाइम पे, या उस टाइम पे मेरे जहन में और चीजें चल रही थी. जो सुबह से जो परेशानी थी वो पीछे चली गई है, अब मैं इस टाइम के बारे में सोच रहा हूँ. इससे क्या होता है कि उनका लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वरी जो है ना वो कम हो जाती है, एंड दे ऑल्सो फील इन कंट्रोल. ठीक है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? बस इसकी जो है ना बेसिक टेक्निक जो है ना जनरलाइज की, वो यही होती है, because they are basically worrying about a lot of things at same time. Any questions so far? Anything that you want to ask or share? All right. Perfect. Let's move forward. Am I audible? All right. Now let's come how CBT is used to treat panic disorder. All right. Who would like to share what is panic disorder? Anything that, any knowledge, any concept that you have regarding panic disorder? बताएं जी. Because we do have a lot of people from psychology background, so I also like to know your perspective about it. What is panic disorder? Ji Adiba. Go ahead. सुन रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है? बहुत थोड़ी आ रही है दीदी. जी जी. जी जी अब आ रही है? जी आ रही है. पैनिक डिसऑर्डर इज काइंड ऑफ लाइक एंजाइटी की सूरत में मोस्टली लोगों को होता है, स्पेशली कुछ लोगों को डिप्रेशन की सूरत में भी हो जाता है, कुछ लोगों को एंजाइटी की सूरत में, कुछ लोग एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं तो इस सूरत में भी उनको पैनिक डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस आपको नेचुरली आप एक नॉर्मल इंसान दिखेंगे, आपको लगेगा कि कुछ भी आपको वरी नहीं है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, लेकिन आपके इसमें सबसे ज्यादा ना आपको सोमैटिकली बहुत इसमें आप कह लें कि अफेक्टेड होते हैं. फॉर इंस्टेंस आप अच्छे वाले हैं और आपको अचानक आपका सांस आना बंद हो जाएगा, आपकी ब्रीथिंग बहुत या तो फास्ट हो जाती है या बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, और आपको समटाइम्स स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है. समटाइम आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको कुछ अभी होने लगा है, समटाइम आपकी आंखों के आगे अचानक से अंधेरा आ जाएगा. तो एक कुछ मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द माय पेशेंट शी लाइक कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, तो अचानक मेरे साथ ऐसा हो जाता है. तो कुछ ऐसे भी बैकग्राउंड के साथ आएंगे जो कहेंगे कि आपको किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता. वो अचानक ऐसा पैनिक होता है कि जिसमें आपकी फैमिली, समटाइम पढ़े लिखे बहुत से लोग होते हैं जो कि उस सिचुएशन से डर जाते हैं. उनको वाकई में लगता होता है कि अचानक कुछ हो गया, क्योंकि वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन होती है जिसमें
हैं। और पैनिक हम्म, अटैक मोस्ट ऑफ द टाइम ना लाइक के पढ़े लिखे साइकोलॉजी बैकग्राउंड में भी होने के बावजूद भी आप लोगों को पता नहीं चलता इजीली कि ये पैनिक अटैक का। मोस्ट लोग कहते हैं घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हम्म, हो रहा है, मैं अच्छा भला था, मैं बस चल के आ रहा था, अचानक से होने लग गया। तो हम्म। Adiba, we can't hear you. Can anyone else hear her? Because I cannot. Adiba, are you still with us? किसी भी इंडिविजुअल्स को लाइक कहते हैं कि डिसअपेयर अपेयर हो सकती है। सॉरी। Hmm. All right. Thank you so much, Adiba, for sharing that with us. बिल्कुल आपने सही कहा है. And as you can see in the messages as well, it's a sudden urges of intense fear or discomfort that reach a peak within minutes. It's having unexpected panic attacks, recurrent panic attacks. बिल्कुल सही. So basically, it's a very sudden, it's very intense surges of fear that is often accompanied by most important thing physical symptoms. इसमें हार्ट बीट तेज हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पूरी बॉडी आपकी शिवर कर रही होती है. एंड मोस्टली दीज अटैक्स दे कम आउट ऑफ नोवेयर. ठीक है. कभी कभार देर इज ऑल्सो अ प्रिडिक्टेबल साइकिल, लेकिन इनिशियली क्लाइंट को नहीं समझ आ रहा होता कि ये कब मुझे हो जाते हैं. ठीक है. एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न ऑफ साइकिल इन ऑर्डर टू बेसिकली heal the client or to recover from panic disorder. इसमें सबसे पहला ही हमारा पार्ट है, दैट इज पैनिक साइकिल. अच्छा, let's talk about this panic cycle, which is very important. एक minute. All right. So first thing is, सबसे पहले आपको anxiety sensations होती है. What is that? These are the physical symptoms that you experience. एकदम से सांस रुक जाना, सांस में तंगी होना. फॉर एग्जाम्पल हैविंग, आप अपने चेस्ट में यू फील सम टाइटनेस, हाथ में पसीने आ जाना, हार्ट बीट स्किप हो जाना, दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ योर पैनिक अटैक. देन you start having catastrophic beliefs about the sensations that you're experiencing. पहली चीज इनके जहन में ये आएगी, सबसे पहले कैटास्ट्रॉफिक थॉट ये आएगा कि आई एम गोइंग टू हैव अ हार्ट अटैक. और वाकई में जिसको भी पैनिक अटैक हुआ है, जिसने भी कभी ये चीज एक्सपीरियंस किया, वो वाकई ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू हैविंग अ हार्ट अटैक. या आई एम गोइंग टू पास आउट, और आई एम गोइंग टू डाई, और आई एम जस्ट वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस. अच्छा, अब ये जो स्पेसिफिक थॉट है ना, जिसको ऑब्वियसली अभी जिसने थेरेपी नहीं ली है, जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट लिया है, ये जो थॉट है ना सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग होगा उनके लिए, कि ऑलरेडी सिचुएशन बहुत खराब हुई हुई है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट they have started thinking ke what's going to happen next, and they're going to think about all the negative and bad things about it. This definitely is going to increase the symptoms. ठीक है. जो फियर था वो फिजिकल सिम्टम्स में चला गया है, वो और ज्यादा हार्ट बीट आपकी तेज हो गई है, और डिजीनेस हो रही है, और चक्कर आ रहे हैं, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन इवेंचुअली आपको पैनिक अटैक हो जाता है. विच इज ऑल्सो, हम साइकोलॉजिकली इसको ये कहते हैं कि आपका ब्रेन एंड बॉडी जो है वो फुल टाइम अलार्म मोड पे चला गया. दैट्स बेसिकली अलार्म मोड. ये बॉडी और ब्रेन बेसिकली वो शट डाउन इसलिए हो रहा है ताकि आप सर्वाइव कर सको. ठीक है. एंड once you have recovered from the panic attack, you start worrying about having another panic attack. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि यू एक्चुअली हैव अ कांस्टेंट फियर, क्या फिर से हो जाएगा, फिर से तो नहीं हो जाएगा, मैंने यहाँ नहीं जाना, मुझे उस जगह पे हुआ था, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा, मैंने ये चीज नहीं देखनी, ये इससे बात नहीं करनी, मुझे इधर ही हुआ था, मैं दोबारा ना मुझे हो जाए. दिस अ कॉन्स्टेंट वरी अबाउट इट, जो डेफिनेटली आपका साइकिल को सिर्फ रिपीट कराने में हेल्प करता है. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में सिर्फ एक ही दफा एक्सपीरियंस किया और दोबारा नहीं हुआ है. ठीक है. और उसकी यही रीजन है कि एक तो दे कंट्रोल देयर थॉट्स, दे फिगर आउट, दे अंडरस्टूड कि इट वाज माय थॉट्स जो उसको प्रोवोक कर रहे थे, सो आई एम नॉट गोइंग टू थिंकिंग अबाउट इट.
ठीक है, हमने सबसे पहले अपने बिलीव्स को चैलेंज करना होता है कि मेरी हार्ट बीट का मतलब ये नहीं है कि मुझे हार्ट बीट अगर तेज हो रही है या हार्ट में कुछ मुझे चेस्ट में टाइटनेस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ हार्ट अटैक ही आ रहा है। ठीक है, मुझे डिजीनेस हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चक्कर ही आ जाएंगे और मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरह के थॉट्स, व्हाट इफ आई डाई, व्हाट इफ आई पास आउट, ठीक है, इन थॉट्स को हमने बेसिकली चैलेंज करना होता है, इन थॉट्स को हमने रिफ्रेम करना होता है, बिकॉज दीज थॉट्स दे बेसिकली हेल्प टू sorry, they do not help, they provoke your symptoms, they provoke your physical sensations as well. Then moving towards interoceptive exposure. So यहाँ पे क्या होता है, you bring the clients intentionally on that bodily sensations that they had a lot of fear about, to prove it to them कि ये safe है, ये tolerable है। ठीक है, अगर आपको डिजीनेस हो, मैं आपके साथ हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, लेकिन आप बेहोश नहीं होंगे। ठीक है, नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ये हमने क्लाइंट को सिखाना होता है। एंड वंस, और ये मैं आपको बात बताऊं, नॉट जस्ट व्हेन यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक, जब वाकई में आपकी तबीयत खराब हो, सपोज आप सारा दिन बाहर हैं, बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, पानी नहीं पिया और चक्कर आने लग गए, उस टाइम पे ट्रस्ट मी, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, अगर आपकी वाकई तबीयत खराब हो रही हो, जस्ट टेल योरसेल्फ टू काम डाउन। सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, रिलैक्स, हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं बट मैं ठीक हो जाऊंगी, ये थोड़ी देर में चला जाएगा, मुझे पानी की कमी हुई है, मैं थक गई हूँ, मुझे गर्मी की वजह से हो रहा है, ये अभी ठीक हो जाएगा। एंड देन इट एक्चुअली गेट्स बेटर। डू यू एग्री विद दिस थिंग? ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनी एक्सपीरियंस कि उनकी वाकई फिजिकल सिम्टम्स उनको आ रहे हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स उन्होंने उसको रिकवर किया हो? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? जी अदीबा, प्लीज गो अहेड। जैसे कि मैं मोस्टली हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में आपको पता है कि अकेले होते हैं, तो आप बीमार हो तो कुछ भी हो, किसी भी किस्म की आपको तकलीफ हो, तो उसका आपने खुद ही उसको फेस करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द जी। टाइम सर में दर्द हो, सम टाइम कोई बहुत ज्यादा हार्ट बीट तेज हो जाए, बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, तो घर में भी इसलिए बताते हैं कि क्योंकि वालदा सिंगल पेरेंट है तो वो थोड़ी सा वरी ज्यादा हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में सम टाइम मेरे फ्रेंड्स भी कहेंगे कि तुम अकेले हो, किसी को बता दो, लेकिन मैं मैं कहती हूँ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई एम अडल्ट एंड मैं मेडिसिन लूंगी, जाऊंगी, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। और एक्चुअली होता भी ऐसा है, मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर खुद को ठीक कर लेती हूँ। और समटाइम ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के अंदर कि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है और मुझे पता होता है कि मैंने काम पे जाना है, मुझे पता है मैंने लेक्चर लेना है, हर चीज करनी है, तो मैं फौरन मतलब मैं उसको अपने क्रैम्प्स को, ईच एंड एवरीथिंग को अपने ऊपर सवार नहीं करती। मतलब मैंने अंडा बॉईल करना है, साथ में कोई मेडिसिन लेनी है और मैंने निकल पड़ना है। और रियली कि मुझे वो सारा दिन नहीं पता चलता, और समटाइम मतलब पेन होती है, लेकिन मैं उसको अपने सर पे सवार नहीं करती। तो उसके साथ मुझे पता है कि ये जितना ज्यादा हो, लेकिन मुझे काम तो करना ही है। तो इसलिए फिर मैं अपने आप को मतलब अपनी सोच को उस तरीके की कह ले कि वो एक गर्लिश जो चीज है वो उसको अपने ऊपर लाइक सवार नहीं करने देती। तो जिसकी वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें अपने ना कंटिन्यू करती रहती हूँ, क्योंकि आपने हर चीज खुद करनी होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि जब आप अकेले होते हैं, जब आपको पता होता है कि सब कुछ मैंने ही करना है, तब आप बहुत सी चीजों को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि सामने कोई आपकी केयर करने वाला है, कोई आपके पास है, तो ऑटोमेटिकली आप उस पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं और चीजें उसी तरीके से आप देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपके बिलीफ्स है वो भी बहुत ज्यादा वर्क करते हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही, थैंक यू अदीबा, वेरी ट्रू, वेरी रिलेटेबल। सी, इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। अगर आप किसी और पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उससे इंसान नेचुरली अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने लग जाता है। बट व्हेन यू नो दैट यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, स्पेशली अगर आप कहीं बाहर हैं, पब्लिक में आप अकेले हैं, स्पेशली व्हेन देयर इज नो वन अराउंड यू हु कैन हेल्प यू और सपोर्ट यू, तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं।
और आपने यही अपने आप को हर वक्त ही रखना है। जरूरी नहीं है कि जब कोई साथ हो। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ, आई रिमेम्बर जब मुझे शुरू में बहुत चक्कर आते थे, वीकनेस बहुत थी, तो पता था अम्मी साथ हैं, कुछ भी हो जाएगा अम्मी संभालेंगे, तो मैं कभी खुद का केयर नहीं किया इस तरह से। बट मैं लेटर लाइफ में जब पता लगा कि नहीं, हर वक्त योर पेरेंट्स और you're not going to have someone to support you in these conditions, so you have to manage things on your own. जी हुदा ने भी कुछ कहना है? यस हुदा प्लीज। मेरा क्वेश्चन है, लाइक इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ पैनिक अटैक, तो उस पॉइंट पे अगर उसको ऐसे लगता है कि दैट पर्सन, लाइक उसको लगता है कि भाई उसको सांस नहीं आ रहा है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, बट अगला बंदा यही कह रहा है कि ब्रीथ करो, बिकॉज तो लाइक इज इट ऑल इन योर ब्रेन, या असल में आपकी बॉडी उस टाइम ऐसे स्टेट में होती है कि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे? अच्छा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया होता। हम जब सीबीटी की बात करते हैं तो सीबीटी इज नॉट समथिंग दैट यू कैन इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द पैनिक अटैक। सीबीटी इम्प्लीमेंट होती है आफ्टर द पैनिक अटैक। ड्यूरिंग द पैनिक अटैक आपने कुछ भी नहीं उस बंदे के साथ करना। ये नहीं कहना सांस लो, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। ये चीजें हो सकता है उसको और प्रोवोक करे, क्योंकि पैनिक अटैक विद इन फ्यू मिनट्स चला जाता है। तो यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट विद दैट पर्सन। अगर वो कहेगा मुझे सांस नहीं आ रहा, हम कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें सांस आ रहा है, तुम्हें सांस आ रहा है। वो कह रहे नहीं मुझे वाकई सांस नहीं आ रहा, बट वी आर सेइंग नहीं तुम्हें आ रहा है सांस, तो दैट वुड लिटरली बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। और यू कैन ऑल्सो आस्क द पर्सन कि जब तुम्हें पैनिक अटैक आए तो व्हाट डू यू वांट मी टू डू। वो कभी कभार आपको बता देंगे तुमने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ना है, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मुझे टच नहीं करना, मैं और प्रोवोक हो जाऊंगा जब मुझे पैनिक अटैक आ रहा हो। तो यू हैव टू फर्स्ट आस्क व्हाट डू यू वांट अस टू डू व्हेन यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक। मोस्टली वो यही रेकमेंड करते हैं कि कुछ भी मत करो, जस्ट बी देयर विद मी, कि मैं अकेला ना हूं, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर मुझे अभी कुछ हो जाएगा तो हु इज गोइंग टू हेल्प मी। So if they know that there's someone standing beside them or sitting beside them, that they actually feel calm in that situation. So CBT is something जो हमने बाद में implement करनी होती है, not during the attack. किसी ने और भी hand raise किया था? Aisha has said, yes, I have managed to stop a panic attack by taking deep breaths and calming myself down. Squeezing a cushion helps relieve the build up tension. बिल्कुल, ये sensory sensations होती हैं। आप कुशन को पकड़ लें, पिलो ले लें, अपना दुपट्टा कोई है, कोई शर्ट का पीस है, कोई सॉफ्ट चीज है, anything that can help you to activate your senses, that also helps to calm down someone who is going through a panic attack. Marine has said that's so true. As a kid, I used to get so anxious that I would throw up. I eventually managed it on my own with just my thoughts. Thank you, Marine, for sharing that. Anyone else would like to say something? Or shall I move forward? All right, let's move forward then. Perfect. All right, let's talk about some other techniques of panic disorder. अच्छा, अब ये भी वही चीज है कि the only reason why I'm showing this to you is because I want you to make notes. कि जब आपके पास कोई भी इस तरह का क्लाइंट है तो आप you would have just quickly आप identify कर पाएंगे कि इसके साथ मैंने क्या क्या टेक्निक्स करी हैं। इसमें भी it's same like depression. We have different categories. The first one is cognitive reconstructing, जिसमें आप you have to challenge these thoughts जो भी उनको आ रहे होते हैं. Then we have exposure task that I have also discussed कि आपको अगर suppose someone is having, किसी को फियर है कि मुझे पार्किंग लॉट में जाती हूँ तो मुझे पैनिक अटैक हो जाता है, या मैं किसी फ्रेंड से बात करती हूँ तो मुझे पैनिक अटैक हो जाता है, तो एक्सपोजर टास्क में यू एक्चुअली आस्क देम टू रीलिव द सेम सिचुएशन, बट व्हेन यू आर विद इन द सेम सिचुएशन आइडेंटिफाई योर थॉट्स. उस टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स दैट वर कमिंग इन योर माइंड. ठीक है. ब्रेथ कंट्रोल प्रोसीजर्स सेम लाइक डीप ब्रीदिंग. ठीक है, जिसमें यू हैव टू, मे बी आप उनसे आप बॉक्स ब्रीदिंग करवा लें. ठीक है, उनसे 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक करवा लें. बेसिकली इट्स इम्पोर्टेंट टू, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग डीप ब्रेथ्स, यू गिव देम समथिंग कि आपने बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, 3-3-3 ब्रीथ करनी है टेक्निक. 3 सेकंड्स में इनहेल करना है, 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और 3 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करना है. गिव देम द नेम ऑफ द टेक्निक. that helps them to remember and to basically उसको फिर implement भी करते हैं. मसल रिलैक्सेशन सेम पार्ट ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोलिंग प्रोसीजर, इसमें आप उनको सिखाते हैं, पीएमआर के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से हर बॉडी पार्ट का जो है वो हमने टेंस करना होता है, फिर हमने उसको रिलीज करना होता है.
Then we have grounding. It's the same technique. I'm sure you are familiar with it. 5, 4, 3, 2, 1 method hota hai. I have to ask them 5 things you see, 4 things you can touch, 3 things you can hear, 2 things you can smell, and 1 thing you can taste. Let me know if you guys want me to do grounding technique. अभी करनी है तो मैं करवा लेती हूँ आप लोगों के साथ. अगर नहीं करनी तो I can move forward. What do you guys suggest? इसको एंड पे रख लेते, टाइम बचेगा तो फिर एंड पे ग्राउंडिंग टेक्निक कर लेंगे. जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर इफ आई फॉरगेट. Alright, because grounding is basically you have to bring the client into the present. क्योंकि mostly panic attack के time पे they are not, जब वो in the moment होते ही नहीं है. So grounding helps them to bring them back. Then we have mindfulness training. That's also the same thing, where you have to teach the client to observe. सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें. टीच द क्लाइंट टू ऑब्जर्व, नॉट रिएक्ट. ठीक है, एंजाइटी हो रही है, लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन यू. वॉच योर एंजाइटी राइज एंड फॉल लाइक अ वेव. ठीक है, स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम इट और स्टॉप फाइटिंग इट. इट कम. ठीक है, कैन यू प्लीज गाइड मसल रिलैक्सेशन के बारे में. ठीक है, मसल रिलैक्सेशन का मैं आपको बता देती हूँ पीएमआर के बारे में. ऑलराइट, ठीक है. सो यू हैव टू टीच देम सम, बड़े मजे की मेटाफर्स भी होते थे. आई ओनली रिमेम्बर, एक तो शायद मुझे याद है कि आप उनको ये बताते हैं कि आपका जो पैनिक है, व्हाटएवर द सिचुएशन दैट यू आर इन, इट्स जस्ट लाइक अ क्लाउड. ठीक है, अभी इट्स वेरी हैवी, इट फील्स हैवी, बट गिव इट सम टाइम, इट विल पास ऑन. ठीक है, उनको ये समझाना था कि एट दिस मोमेंट इट माइट फील हैवी, इट माइट फील लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट माइट फील लाइक मैं इससे कभी बाहर नहीं आऊंगा, बट यू विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ इट. देन वी हैव जर्नलिंग. इट्स नॉट जस्ट नोट टेकिंग कि आपने बस नोट्स बना लिए. इट्स बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स थ्रू जर्नलिंग. ठीक है, आप अपने क्लाइंट से पूछें कि कब उनको when they do feel anxious, when they feel like anxiety, पैनिक अटैक होने लगा है, उससे पहले क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या थॉट्स उनको ड्यूरिंग पैनिक अटैक आते हैं, उससे पहले क्या थॉट्स आ रहे होते हैं, एंड हाउ डू दे रिस्पॉन्डेड टू दीज थॉट्स. ठीक है, जर्नलिंग इज जस्ट नॉट कि आपने बस नोट्स लिखवा लिए, प्रॉपर आपने उनको गाइडेंस देनी होती है कि इस तरह से आपने जर्नलिंग करनी है. Then lastly we have smart goals. अच्छा, स्मार्ट गोल्स भी बहुत अच्छी बड़ी इफेक्टिव टेक्निक्स है. इसके बाद फिर मैं आपको पीएमआर का बताती हूँ. जो स्मार्ट गोल्स क्या है जी, SMART, where S means specific, which means that you have to make sure that whatever goals that you are making, keep them specific, keep them positive. Specific मतलब शॉर्ट गोल्स रखने, टू द पॉइंट रखने और उनको पॉजिटिव रखने. फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लाइंट है जिसको आप कह लो कि उसको किसी शॉप में जाते हुए एंजाइटी होती है, या पैनिक, शॉप पे गया था पैनिक अटैक आ गया, अब मैं दोबारा नहीं जा सकता. ठीक है, तो उनको आपने छोटे गोल्स बनाने होते हैं कि आप जो है ना वो शॉप में जाएंगे, किसी के साथ जाएंगे, या सिर्फ 2 मिनट के लिए आप जाएंगे और फिर बाहर आ जाएंगे. ये मैयरेबल में आ जाएगा कि कितने मिनट्स के लिए आपने जाना है. 2 मिनट के लिए जाना है, 3 मिनट के लिए जाना है, एंड देन यू विल इवेंचुअली कम आउट. Yes. Yes. ठीक है, एंड अटेनेबल. ठीक है, अटेनेबल मतलब कि कोई ऐसी शॉप पे जाए जो फेमिलियर हो, जो घर के पास हो, जिसका बंदे के बारे में पता हो, क्योंकि वो इतना ना हो, मतलब इतना अनरियलिस्टिक ना हो कि वो गोल ही आप ऐसा उसको दे दे कि उससे उसको और बेचैनी शुरू हो जाए. रेलिवेंट होना चाहिए. आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप क्यों ये गोल अचीव करना चाहते हैं, कि यू वांट टू गो टू द शॉप. ठीक है, हो सकता है वो ये कहे कि मैं इंडिपेंडेंट सीखना चाहता हूँ, मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूँ, मेरी फेवरेट शॉप है, मुझे वहाँ पे रेगुलर जाना होता है. तो मेक श्योर वट एवर गोल यू सेट, इट्स रेलिवेंट टू द एंजाइटी, टू द ट्रिगर दैट्स कॉजिंग द एंजाइटी. एंड इट हैज टू बी टाइम बाउंड कि आपने इसको 3 दिन में यू हैव टू अचीव दिस गोल, 1 हफ्ते में आपने इसको अचीव करना है. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द क्लाइंट कि आई वांट टू स्टॉप हैविंग अ पैनिक अटैक, आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट, टू टेल देम कि यू आर लर्निंग हाउ टू गो टू द शॉप ऑन योर ओन.
और शॉप पे जाके अगर कोई आपको सिम्टम्स आते हैं तो उसको कैसे हमने सीखना है, हम कैसे उससे डील करना है, हम बस ये सीखने के लिए स्मार्ट गोल्स बनाए हैं। कभी भी स्मार्ट गोल इसलिए नहीं बनाते कि आप उसको ये कहो कि आई वांट टू स्टॉप हैविंग अ पैनिक अटैक, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक दी स्मार्ट गोल्स। बिकॉज अगर आप उसका माइंड में ये रखेंगे कि आई वांट टू स्टॉप हैविंग अ पैनिक अटैक, वो हर वक्त यही सोचता रहेगा कि बस पैनिक अटैक ना हो जाए, पैनिक अटैक ना हो जाए, एंड दैट्स द, फिर वो वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम दिस स्मार्ट गोल, बिकॉज जो अगली स्लाइड है उसमें आप लोगों का एक टास्क है। अच्छा, so you have to basically make smart goal for a client who have a fear of having panic attacks in crowded places. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू डू इट नाउ। अभी मतलब ये सेशन के दौरान ही इसको हमने करना है। इट वॉन्ट टेक लेस देन 5 to 10 minutes। आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट इज योर गोल, राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव, बी क्लियर एंड डिटेल्ड व्हाट टू एक्सपेक्ट। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है किसी और चीज की एग्जाम्पल है, लेकिन आपने इसके हिसाब से ये स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। यू हैव 5 to 10 minutes, इसको आप कर लें। एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? If no questions, you can go ahead.
जी अदीबा, बस 2 मिनट्स और दे दें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। All right, I think let's begin now. And please try to keep your cameras on. Okay, it's recommended for all of you. Ji Adiba, would you like to first start? जी बिल्कुल। जी एक्चुअली इसमें ये था कि मैंने वन ऑफ माय क्लाइंट उनके साथ मैंने ये किया था, मैं उसी का आपके साथ शेयर करूंगी। उससे भी क्राउडेड प्लेसेस से फेयर था, और जब भी वो क्राउडेड प्लेसेस पे जाता था और उसको बहुत से लाइक ऐसा होता था जैसे मुझे कुछ होने लगा है, और सम काइंड उसको मॉडरेट लेवल के पैनिक अटैक्स होते थे। देन उसके लिए हमने उसको यानी कि एक प्लान किया था, जिसमें उनके सबसे पहले, क्योंकि उसका जो ऑफिस था वो जस्ट अपने ऑफिस टू होम करता था, इससे ज्यादा चीजें नहीं करता था। देन उसके लिए हमने प्लान किया था कि के जिस बिल्डिंग में वो जाता है, तो सबसे पहले हम ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे कि उस बिल्डिंग में जाना, यानी कि उस बिल्डिंग में जो कॉफी शॉप्स है, उस बिल्डिंग के अंदर जो जिम है, उस बिल्डिंग के अंदर जो स्विमिंग पूल है, आप उसमें जाना स्टार्ट करें। देन उसमें जब उसको स्पेसिफिक कर दिया कि पहले आप छोटी छोटी चीजों पे ग्रेजुअली छोटे कॉफी शॉप्स पे, छोटे स्विमिंग पूल्स यानी कि स्मॉल जहाँ पे लोग कम है वहां पे जाना पहले स्टार्ट करें। एंड देन जब आप वहां पे जाएंगे तो आप उसको मेजरेबल कैसे बनाएंगे। अब जैसे मेजरेबल बनाने के लिए हमने उसको कहा था कि आप है कि मैं आधा घंटा नहीं बैठ सकता, आप 10 मिनट या 5 मिनट बैठे। इसी तरह अगर आप जिम जाते हैं, आपको लगता है कि वहां पे मैं 1 आवर्स नहीं स्पेंड कर सकता, आप जस्ट 10 मिनट, और 10 मिनट भी बेशक आप जिम ना करें, जस्ट वहां पे बैठ के 10 मिनट 15 मिनट लोगों को ऑब्जर्व करके जस्ट वहां पे बैठ के किसी कोने में बैठ के आ जाए। तो इसी तरीके से उसने फिर वो स्टार्ट किया था, और उसमें मेजरेबल मैंने उनको चीज ये कही थी कि आपने जब जाना है तब आपको बहुत ज्यादा वरी होती है, टेंशन होती है, तो उसका मुझे लेवल बताना कि उस टाइम कितनी थी। जैसे ही आप किसी कॉफी शॉप से बाहर निकले या किसी मॉल से बाहर निकले हैं, तो जैसे ही उस मॉल से या कॉफी शॉप से बाहर निकले हैं, तो तब आपका एंजाइटी
एंजाइटी लेवल कितना था। तब आप तो तब वो हमेशा कहता था कि जब मैं निकलता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता हूँ, जब मैं जिम से निकलता हूँ तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता हूँ। तो इसी तरीके से फिर उसको अचीवेबल कैसे बनाना है कि पहले हमने कम क्राउडेड एरियाज पे जाना है, कम जहाँ पे छोटी शॉप्स पे, छोटे जिम में, या ऐसे लोग जहाँ पे क्राउड कम है, पहले हमने वहां पे जाना शुरू करना है। देन ग्रेजुअली मूव करते चले जाना है ज्यादा क्राउड की तरफ। फॉर इंस्टेंस फिर आप मॉल में जाना शुरू कर दें, फॉर इंस्टेंस आप फिर किसी इवेंट पे जाना शुरू कर दें, तो वहां से फिर होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये इतनी भी ज्यादा लाइक ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं फेयरेबल था। उसके बाद उसको रेलिवेंट करना है लास्ट में कि किस तरीके से मैं अपनी जो डेली जो गोल था वो ये जो मैं ग्रेजुअली मैं ये चीजें कर रहा हूँ वो किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मेरे फेयर को कम कर रही है, यानी कि मेरे जो पैनिक फेयर है उसको कंट्रोल से बाहर लेके आ रही है। फिर उसके साथ आपने टाइम बाउंड करना है। टाइम बाउंड में इसमें हो जाएगा कि आपने कम से कम अगर आप एक वीक एक्टिविटी करते हैं तो एक वीक के लिए हम उनसे जरूर कहेंगे कि आपने 20 मिनट या 30 मिनट या कोई भी टाइम, आप जितना आप समझते हैं कि उतना टाइम लाजमी आपने वहां पे स्टे करना है। ये नहीं कि आपने अगर 5 मिनट का मैंने उनको टाइम बाउंड दे दिया तो वो आपने 5 मिनट लाजमी स्टे करना है एक वीक के लिए। तो उसके बाद आप अपने टाइम बाउंड को बढ़ाते चले जाएंगे। तो जब आप अपने टाइम बाउंड को बढ़ाते चले जाएंगे तो इसी तरह कुछ वीक्स के बाद आपका ये जो टेक्निक है ये आपको वर्क करने लग जाएगा। बिल्कुल सही, परफेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हु एल्स वुड आल्सो लाइक टू शेयर? जिसने चैट में किया वही बता दें। वानिया, वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट यू हैव रिटन? Do we have Vania with us? Nadine, आप बता दें, would you like to share what you have written in the chat box? Yes, sure. So I decided the goal to be to spend some time at the local market, which is kind of crowded. And I thought that we can measure it by setting a time limit on it. So like, for example, spend at least 20 minutes at the local market. And then it is attainable because the local markets are usually within walking distance and doesn't require much time. And then it's relevant because if the client is afraid of being in crowded places, then we should focus on places that he would have to at least visit once for things that are necessary. And then it's time bound, so like we're going for 1 week, and then we're going to track the progress doing that, achieve that goal for 20 minutes every day. चाय पिए बना दूं? It's okay, I muted her, it's okay. Perfect, thank you, Marine. बिल्कुल सही आपने कहा. You can also add whether you want to be in a crowded place alone. Do you have any support? If you have support, you can always start with someone being with you, and then eventually you can change the goals and make sure that now the person is able to go in the crowded places on their own. अच्छा, यहाँ पे there was this one I was looking at. Aksa. Aksa, are you with us? Where is Aksa? Aksa Rashid, yes. Aksa, आपने जो goals लिखी है ना, they are not relevant to the statement that I provided. You have to write goals about someone who has a fear of having panic attack in crowded places. And I think आपने generic से लिखे हैं, आपने goal भी बता दिया. For example, reading, self-care, artwork, cooking, whatever they like. And the specific is the patient will choose one activity they find enjoyable. No, this is not how we use SMART technique. I wanted to clarify this. Because यहाँ पे you are just mentioning about the things that they like to enjoy. But you also have to mention कि उनको panic attack किस चीज़ का हो रहा है. सबसे पहले you have to identify that, what are the triggers of that client. And then you choose goals according to that. They will do it 3 times per week. Activity is simple, time bound. ठीक है अक्सर, this is not the right way to do this exercise. I wanted to clarify this कि आपने शायद समझा नहीं मेरे सवाल को.
you have to make smart goals according to the goal. और goal क्या है कि the person has a fear of panic attack in crowded places. goal हमने ये रखना है कि वो अकेला crowded places पे चला जाए, या वो he is able to handle the symptoms if he experience in the crowded places, or is able to manage on his own. ठीक है. अच्छा, वानिया क्या कह रही, माइक नहीं चल रहा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैंने आपके सबके गोल्स पढ़ लिए. फबिया का भी पढ़ लेते हैं. फबिया, वुड यू आल्सो लाइक टू से, आप एक दफा अपना वो बता दें, फिर विल मूव फॉरवर्ड. आई लाइक फबियाज एज वेल. Goal is I want to go shopping alone and buy a dress all by myself after trying it. ठीक है, crowded places में shopping करनी है. जी फबिया, if you are there, would you like to unmute yourself and say for us? जी, नेट इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. स्मार्ट गोल्स का थोड़ा सा फिर बता दें. यस, अक्सर एज आई वाज टेलिंग कि आपने वही गोल्स बनाने हैं दैट इज स्पेसिफिक टू द क्लाइंट गोल्स. आपने पहले क्लाइंट से पूछना है कि उनके क्या गोल्स हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड द गोल इनटू 5 डिफरेंट एलिमेंट्स जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो एंड टाइम बाउंड हो. एंड ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल गोल्स. ठीक है, सिर्फ आपने गोल को नहीं समझा, आपने अपने से ही कोई गोल ऐड ऑन कर दिया. अक्सर गोल जो है वो आपको क्लाइंट ही बताएगा कि मेरा ये गोल है, लेकिन इसको मैं कैसे अचीव करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. then you will be using this technique. ठीक है. अच्छा, और आई थिंक अक्सर नहीं कहा था PMR के बारे में, तो वो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई वॉज लुकिंग एट द इमेज. हाँ, ये देखिए. अच्छा, ये देखिए, दिस इज द टेक्निक दैट इज मोस्टली यूज जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं. ठीक है, वेट अ सेकंड. कैन यू सी द, ये स्क्रीन नजर आ रही सबको? यस. Yes, Karen. All right. So basically, as you can see, what are we doing over here? We are reducing the stress that is experienced by the client by focusing on the different muscle groups of the body. We ask the client to sit on a chair in a very comfortable position. ठीक है, एंड वी टेल देम कि ये क्यों हम ये करा रहे हैं, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू काम योर माइंड, टू काम योर बॉडी. इट हेल्प्स यू टू रिलीज द फिजिकल टेंशन एंड द स्ट्रेस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. यू हैव टू गाइड देम, अदरवाइज वो कहेंगे कि आप क्यों करा रहे हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा. ठीक है, वी आर बेसिकली गाइडिंग द क्लाइंट टू बी फर्स्ट अवेयर ऑफ दैट टेंशन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड देन लेट इट गो. सबसे पहले वी ऑलवेज, it's not necessary, इसमें कोई hard and fast rule नहीं होता, totally up to the client or the therapist how they want to do it. You can start with the face, जहाँ पे आपने पहले अपने face के muscles को stretch करना होता है. इसे बिल्कुल उसको आप जो है ना वो टाइट कर देते हैं अपने face के muscles को, and then for 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds you keep it like that, and then you ask the client to relax your muscles. ठीक है, वैसे टाइट करेंगे और फिर अपने face के muscles को relax कर देंगे. Then you can move towards your shoulder. First, you ask the client to tighten your muscles of the shoulders. So full tight kar le, and then relax it. Then the tension is move towards your arms, where you ask the client to tense your arms. Usko jitna खींच सकते हैं maximum. You stretch them, and then you relax your arms. ठीक है. जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्म तक हो, ये हैंड पे भी होता है. आप इस तरह से भी उनको करवाते हैं. इसको फुल हैंड को you ask the client कि आप अपने इसको fist बनाए tight and then let it go. You actually do that, all of you. ये अभी आप मेरे साथ करें, you would feel that there is a lot of tension in your arms, in your fingers, and it will help you to, feel relaxed. ठीक है? It's same, it goes down. Then you can do the same thing with your legs. You can squeeze your calves, and then you can hold for a few seconds, and then you relax your calves muscles. You do the same with your toes. अपने पाँव के toes को tightly curl करें, hold it for a few seconds and then release it.
और PMR में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, और ये यू कैन डू दिस एनीवेयर. अगर आपको खुद से समझ नहीं आ रही, यूट्यूब पे देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, इफ यू वांट आई कैन आल्सो शेयर दैट वीडियो. वो आपको बड़ा अच्छा गाइड कर रही होती है, जो भी इंस्ट्रक्टर होता है, एंड यू फॉलो दैट एंड यू डू दैट. It's simple, but I believe it's a very, very powerful, very healthy exercise that can actually help your body to relax. और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैनिक अटैक वाले क्लाइंट के साथ किया जाए. ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है that you can actually do with anyone you want to do. And पहले तो अपने ऊपर आपने करनी है सारी टेक्निक्स जो भी हम सीख रहे हैं. बस implement those techniques on yourself. खुद भी नहीं करेंगे कभी भी. एक गाइडर, एक अच्छा गाइडर या एक अच्छा इंस्ट्रक्टर वही होता है जो सबसे पहले खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है चीजें, एंड ओनली देन यू कैन गाइड देम बेटर. आई होप अक्सा इट्स क्लियर नाउ. स्पेशल मैंने अक्सा के लिए जो है ना ये करवाई है बिकॉज शी वांटेड टू आस्क, तो फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इफ शी इज क्यूरियस अबाउट इट. तो फिर ऑलराइट, let's move forward. Let's see what do we have next. अच्छा, we're done with the SMART goals. Excellent exercise आप लोगों ने सबने अच्छी की. I'm sure कि अक्सर को भी अब क्लियर हो गया होगा how to basically do these SMART goals. ठीक है, और मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हम ड्यूरिंग द सेशन कर ले तो अच्छा हो जाता है, खुद की भी एक एक्सरसाइज हो जाती है. Now I also get to know कि how much you are able to understand it. All right, now let's move to we're left with two techniques, PTSD and OCD. बस अब रह गया. ठीक है, let's move towards PTSD. We're done with depression, anxiety and panic, which is very common. आपको नजर आएंगे ये symptoms, but they are also challenging. Every disorder, I believe, is very challenging, चाहे वो जितना मर्जी common क्यों ना हो. And now we're going to move towards PTSD, which is post-trauma stress disorder. दरअसल आपके the trauma that you experience, it reshapes how your brain and your body is reacting towards the world. जो भी trauma हम experience करते हैं, it reshapes the way we perceive world. तो I believe कि ये बहुत एक serious disorder है जिसके ऊपर we need to have as much knowledge as we can about it. Because हमें ये लगता है कि PTSD is just maybe about memories, it's about flashbacks, it's about having nightmares. But no, PTSD, it affects how the trauma is stored in the body. ठीक है, इसमें आपकी बॉडी के अंदर भी ट्रॉमा स्टोर हो जाता है. एंड देन हमारे आवर थॉट्स अबाउट सेफ्टी, रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट, ये सब खराब. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे गेट डिस्टॉर्टेड. ठीक है, तो CBT helps us to restructure all those trauma that is stored in our body and those thoughts, and you know, it teaches us how to reclaim power over our mind and our body as well. All right, let's break down. The first one we have is prolonged exposure therapy, which is definitely it's evidence-based treatment. जिसमें फॉर एग्जाम्पल कोई कार एक्सीडेंट का सर्वाइवर है हमारे पास, ठीक है, जिसको PTSD हो गया है. अब वो ये क्या कर रहा है कि क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, उसने वो सर्वाइव किया, तो नाउ जब भी वो कोई हॉर्न की आवाज़ सुनता है या कोई ड्राइविंग के बारे में कोई से बात करता है, तो उसको वो सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, सारा ट्रॉमेटिक माहौल में वो चला जाता है. एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग अफ्रेड कि फिर से कुछ ना दोबारा हो जाए. ठीक है, prolonged exposure therapy आपको gradually, you know, you ask the client to think about that memory again. उनको वो लेके नहीं जाते उस पे. They are not going to take the traumatic person directly to the गाड़ी के पास ले गए या ट्रैफिक में ले जाए, नहीं. पहले सिर्फ उनको इमेजिनेशन कराते हैं, थिंकिंग करवाते हैं कि think and revisit the same traumatic memory, but this time you are in a safe space, you are in a controlled setting, and whatever fear or anxiety that you are feeling right now, you ask them to express it out. उनको ये समझाया जाता है कि whatever happened in the past, it's in the past now, it's no more part of the present, and you are safe now. ठीक है, that is the entire prolonged exposure therapy. इसमें हम जो है वो क्लाइंट को अपने साथ रखते हैं और उनको एक्सपोज कराते रहते हैं टूवर्ड्स द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसने वो गुजारा होता है. Then we have cognitive processing therapy. It's same like मतलब जो हम सीखते आ रहे हैं, बट इसमें जो उनके कुछ स्टक पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं अबाउट द ट्रॉमा, जिसकी वजह से दे आर नॉट एट ऑल विलिंग टू कम आउट ऑफ इट.
ठीक है, स्टक पॉइंट्स क्या होते हैं? इट वाज माय फॉल्ट, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, काश मैं उस टाइम पे ये ना करता, काश मैं रोक लेता, काश मैं उस टाइम पे वहां ना जाता, मैं उसको वहां ना लेके जाता, मैं कॉल ना करता, मैं ये ना करता। दीज आर द स्टक पॉइंट्स, ठीक है, जो उसको कभी भी ग्रो नहीं होने देते कि मैंने उसको उस पर भरोसा क्यों किया, काश मैं उसकी बात ना सुनता, और अब मैं कभी भी नहीं उसकी बात सुनूंगा, या मैं कभी भी वहां नहीं जाऊंगा, या मैं दोबारा कभी भी फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई रिलेशनशिप में भी अगर हम किसी की बात करें, किसी की मैरिज बहुत अब्यूसिव रही हो, तो दे मोस्टली हैव दिस स्टक पॉइंट्स कि आई एम नेवर गोना मैरी अगेन, आई एम नेवर गोना ट्रस्ट अगेन, आई एम नेवर गोना लव समवन अगेन। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी इस स्टक पॉइंट्स को बेसिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। हम उनको 3 तरीके से ये सिखाते हैं। सबसे पहला होता है स्पॉट। स्पॉट मीन्स आइडेंटिफाई योर स्टक पॉइंट्स, ठीक है, देन चैलेंज दो स्टक पॉइंट्स, and then eventually replace those stuck points with the realistic ones. यहाँ पे हम पॉजिटिव वंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं सपोज पॉजिटिव वंस की बात नहीं करेंगे, रियलिस्टिक वंस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज अगर किसी की कोई अब्यूसिव मैरिज रही है या कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहा है, और मैं उसको पॉजिटिव बात ये करूँ, कोई बात नहीं, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, सारे रिलेशनशिप एक जैसे नहीं होते, तो ये उसको वो बात, ये वाली बात उसको हजम नहीं होगी, वो ये वाली बात पे द क्लाइंट विल नॉट कम टू द एग्रीबल पॉइंट। हमें इसको रियलिस्टिक बात बतानी है कि जो भी चीजें हुई वो आपके साथ वैलिड थी, इट वाज आपका बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, इट वाज नॉट हेल्दी, इट वाज नॉट ट्रू, but you can always give a second chance because you deserve a second chance, you deserve to be loved, you deserve to have a healthy relationship। ये रियलिस्टिक बातें हमने उनको रियलिस्टिक बातें बतानी होती, ना कि इतनी कोई पॉजिटिव या बटर कोट करके वो उनको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के साथ हम इस तरह की बातें नहीं करते बिकॉज वो और ट्रिगरिंग हो जाती। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रेस इनक्यूलेशन ट्रेनिंग। ये बेसिकली इमोशनल आर्मर भी इसको कहते हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है जिनको एंजाइटी अटैक्स आ रहे होते हैं, पीटीएसडी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से एंजाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये एक इमोशनल आप समझ लो इमोशनल शील्ड, इमोशनल आर्मर की तरह उसको यूज किया जाता है, जिसमें हम उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, कोपिंग सेल्फ टॉक। ठीक है, what are the statements that they are giving themselves in order to cope। जब भी आपके पास पीटीएसडी का बंदा है या क्लाइंट है, आपने सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि सपोज साल हो गया ट्रॉमा को हुए हुए, 6 महीने हो गए, तो अब तक आपकी क्या क्या कोपिंग स्टेटमेंट्स रह चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उनको कोपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं। देन वी टेल देम अबाउट थॉट स्टॉपिंग। थॉट स्टॉपिंग क्या होती है कि यू लिटरली आस्क द क्लाइंट टू अपने हाथ को ऐसे जोर से टेबल के ऊपर रखें एंड टेल योरसेल्फ टू स्टॉप राइट नाउ। बस आपने लिटरली अपने आप को ये कहना है, इनको आपको बताना होता है, क्लाइंट को बताना होता है कि यू हैव टू स्टॉप दीज थॉट्स बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग यू आउट। यू लिटरली हैव टू बैंग ऑन द टेबल कि अब बस, एंड दैट हेल्प्स। ठीक है, एंड देन डेफिनेटली दैट्स ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ठीक है, इसमें पीएमआर है, डीप ब्रीदिंग है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ठीक है, ऑलराइट, कॉग्निटिव थेरेपी वही सारी बात है कि क्योंकि ट्रॉमा की वजह से आपकी थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, तो यू हैव टू सी कि क्या कॉमन थीम्स होती हैं इन द ट्रॉमेटिक पर्सन। जस्ट अ सेकंड। कॉमन थीम्स क्या होती हैं ट्रॉमेटिक इंडिविजुअल्स वालों के? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? कोई अपने एक्सपीरियंस से कोई बताएं क्या उनकी कॉमन थीम्स होती हैं, वो खुद को कैसे देखते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं? यस कोमल। मैम जो मोस्ट कॉमन चीज उनमें होती है दैट इज नेगेटिव सेल्फ इमेज। जी कोई भी बात होती है उसमें वो नेगेटिवली खुद को क्रिटिसाइज कर रही होती हैं, ब्लेमिंग उनमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल, सेल्फ क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं अबाउट देमसेल्व्स। यस, व्हाट एल्स, हु एल्स वुड लाइक टू ऐड ऑन? कोई और थीम?
Yes, ma'am. Mostly they were blaming themselves. Why me का element बहुत ज़्यादा होता है. बिल्कुल सही. True. They view themselves as the one in the fault कि हमारी ही गलती थी, हमारी ही वजह से सब कुछ हुआ. And they have this overestimation of danger as well. उनको हर वक्त ही लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, आई एम इन द डेंजर. फिर से वो जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस इतना वर्स होता है कि wherever they go they have this एक sensations उनको continuously हो रही होती है कि something bad is going to happen. ठीक है, ये एक बड़ी कॉमन थीम्स है. जी बेटा, एक सेकंड. यू वांट दिस? ठीक है. So we basically have to identify these themes, because once you have these themes then you can work on changing their thoughts. And lastly we have systematic desensitization, the same thing जो हमने किया था regarding exposure techniques. I think अगली slide नहीं, दूसरी. ठीक है. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हमने पहले की हुई है, जिसमें हम ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं. देयर आर टू टाइप्स. फ्लडिंग भी आप करवा सकते हैं, ग्रेजुअल एक्सपोजर भी करा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट सिचुएशन. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप आपने करानी. ठीक है. फ्लडिंग नहीं हमने अपने क्लाइंट्स के साथ करानी, बिकॉज फ्लडिंग हर एक के साथ नहीं सूट करती. तो पहले हमने कोशिश ये करनी है कि ग्रेजुअल थेरेपी पे ही स्टार्ट कराया जाए. अच्छा, नाउ आई ऑल्सो वांटेड टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम CBT, अगर हम PTSD की बात करें तो चिल्ड्रन में भी इट्स वेरी कॉमन. ठीक है. सो आई ऑल्सो वांटेड टू ऐड ऑन कि CBT अगर हम बच्चे हमारे पास आता है विद द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, तो उसके साथ किस तरह से कराया जाए. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न. अच्छा, जिसमें एक बड़ी कॉमन टेक्निक है, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस. एंड बेसिकली these terms they help you to keep these techniques on your fingertips. कि कोई भी बच्चा आएगा तो आपको पता होगा कि हमने किस तरह से उसके साथ CBT करानी है. ठीक है. All right. The first one is psychoeducation and parenting. Very very important thing. I believe अगर आपने ये नहीं ना किया तो फिर बाकी करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा है तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप उसको एजुकेट कराएं अबाउट द ट्रॉमा. एंड हो सकता है द चाइल्ड इज मे बी 4 years old, 5 years old, तो उसको नहीं इतनी समझ आए, तो ऑलवेज कीप द पेरेंट और द केयर गिवर विद यू. You educate them, you tell them what is trauma, how real trauma is, what are the impact of it, how it has affected your child. और हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स तो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा था उसको तो याद भी नहीं था, छोटा था. तो you should always have answers to these questions as well. ठीक है. बहुत सारे बच्चे को नाइटमेयर्स जो है वो बहुत कॉमन है बच्चों में, जिन्होंने कुछ इस तरह का कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो, फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड. तो पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस नाइटमेयर्स ही है, इट्स नथिंग बिग, इट्स नॉट अ बिग डील. बट हमें पता है कि एक नाइटमेयर्स बच्चे को अगर कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं तो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड दैट नाइटमेयर्स. सो वी हैव टू एजुकेट देम. देन ऑब्वियसली रिलैक्सेशन टेक्निक. वॉल्यूम डाउन बेटा. देन वी हैव रिलैक्सेशन टेक्निक. बच्चों की भी हम PMRE करवाते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत इफेक्टिव होती है. जिसमें मोस्टली आपने इसको हमने थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना होता है, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स मेंटालिटी लेवल. ठीक है. जिसमें आप स्पेशली हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो उनको हम करवाते हैं बबल एक्सरसाइज. जस्ट अ सेकंड प्लीज. जी. सो रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हम बात करते हैं, इसमें बेसिकली वी आल्सो यूज दिस बबल टेक्निक कॉल्ड, जिसमें हमको कहते हैं कि आपने बबल्स को पॉप करना है. एंड दिस एक्सरसाइज बेसिकली हेल्प्स देम टू रिलैक्स देयर माइंड. So we have to be very innovative when we are working with children. Then we have affect regulation. You have to help the child to name the emotions that they are experiencing.
इसमें हम फीलिंग्स व्हील यूज करते हैं या इमोशन थर्मोमीटर यूज करते हैं. एंग्री, सैड, हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड, सरप्राइज, ये डिफरेंट इमोशंस का चार्ट हम उनको बना के देते हैं, वेयर वी आस्क द क्लाइंट हाउ आर दे फीलिंग. ठीक है. अगेन कॉग्निटिव कोपिंग वेरी इफेक्टिव. बच्चों को भी उनके जो थॉट्स हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर थॉट्स. इफ द चाइल्ड सेज कि आई डोंट फील सेफ, मैं रात को डर जाता हूँ, मुझे रात को बहुत डर लगता है, या मैं अकेले किचन में नहीं जाता, मुझे डर लगता है. तो वी हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि ये डर जिसको लग रहा है ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो कोरिलेट कर रहा है. एंड यू हैव टू टेल देम कि दैट नाउ यू आर सेफ, नाउ यू आर इन अ सेफ प्लेस, नाउ यू आर आपका जो पास्ट था वो आपका प्रेजेंट नहीं है, नाउ इट्स गॉन, जो भी व्हाटएवर द ट्रॉमा द चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस. देन वी हैव ट्रॉमा नैरेटिव एंड प्रोसेसिंग. दिस इज द हार्ट ऑफ TFCBT, जहाँ पे बच्चा अपने ट्रॉमा की स्टोरी आपको बताता है. Always make sure that you go at their pace. ठीक है. And always use drawing, puppets, pictures, novels, and ask them to narrate their story. थोड़ा आपको बच्चों के साथ क्रिएटिव होकर काम करना पड़ता है. ठीक है. But it's really important to know कि CBT आप यूज कर सकते हो बच्चों के साथ भी, ट्रॉमेटिक वाले खास तौर पे. So you have to be very creative and you have to, assist the child, help the child to tell about their story. And जब कोई भी बच्चा आपसे कुछ स्टोरी शेयर करो तो मेक श्योर कि आपके जो एक्सप्रेशंस हो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंसर्निंग हो, कि आप बच्चे से ये कहें कि चाहे वो उसकी छोटी सी बात, उसने मेरे से पेंसिल खींच ली, तो आप ऐसे उसको हैरान होकर मत देखेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील. आप उसको भी बड़े गौर से उसको देखें कि अच्छा उसने तुमसे पेंसिल ले ली, अच्छा फिर क्या हुआ, so that the client knows that my therapist और जो भी उसके पास डॉक्टर, बच्चों को डॉक्टर ही कहते हैं कि डॉक्टर ने बात करनी है, कि जो डॉक्टर है वो मेरी बात को समझ रहे हैं. क्योंकि मोस्टली जो घर वाले होते हैं वो इस चीज को इतना वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं. एंड द चाइल्ड वांट्स अटेंशन. हमने बच्चे को अटेंशन, फुली अटेंशन देनी होती है, so that they can open. Then we gradually expose the child to real life reminders of trauma as well. Only after they have learned coping skills. ये coping skills सिखाने के बाद ही हम उनके साथ in vivo exposure करते हैं. Suppose a child is scared of maybe taking shower. ठीक है. वो अकेले शावर लेने से बच्चा जो है ना वो डर रहा है. Then अगर आपने in vivo exposure कराना है तो आप उसको पहले वीडियोस दिखाएं. शावर, बच्चे शावर में खेल रहे हैं, बच्चे शावर में ले रहे हैं, हो सकता है वो वीडियो देखकर ही रोना शुरू कर दे. एंड दैट्स योर क्लू कि कुछ हुआ है बाथटब में इसके साथ, या हो सकता है ये कभी डूब गया हो, कभी गिर गया हो, पेरेंट्स नहीं आए हो बचाने के लिए, तो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो गया. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग एक्सपोजर टेक्निक विद द चाइल्ड. वीडियोस दिखाएं, पिक्चर्स दिखाएं, बच्चे का रिएक्शन देखें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इमेजिन कराएं कि लेट्स प्ले अ गेम, वी आर इन द बाथटब, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट्स प्ले सम टॉयज, व्हाट्स हैपनिंग. और हो सकता है कि आप उनसे, आपको तो पता है कि इसके साथ क्या ट्रॉमा हुआ है, यू आस्क द चाइल्ड कि अगर मैं बाथटब से बाहर चली जाऊं या मैं वॉशरूम से बाहर चली जाऊं इमेजिनेशन में, तो हाउ वुड यू फील. हो सकता है वो आपका हाथ पकड़े कि नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे छोड़ के नहीं जाना, आपने मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं डर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा. सो यू वुड नो द ट्रिगर्स. एंड फिर आप उसको बताते हैं, कोपिंग स्किल्स बताते हैं कि इन केस इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस देन हाउ यू कैन कोप अप विद योरसेल्फ. और हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा ही हैज दिस थिंग इन द माइंड कि नाउ माय पेरेंट्स डोंट लव मी बिकॉज दे लेट मी ड्राउन, आई वाज ड्राउनिंग एंड नाउ माय पेरेंट्स डोंट लव मी. हो सकता है कि ये कॉग्निटिव थॉट आप आइडेंटिफाई कर पाए उसकी. तो ये एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू भी आपको कॉग्निशंस के बारे में बच्चे के पता चलता है. बट यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड बी प्रेजेंट, क्योंकि बच्चे ज्यादा मुश्किल होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स. बट यू कैन ऑलवेज यूज दिस टेक्निक अगर आपकी खुद की प्रैक्टिस हो. Then lastly we have child caregiver session, जिसमें जो भी स्किल्स आप बच्चे को सिखाते हैं वो पेरेंट्स को भी सिखाई जाती है, जो भी केयर गिवर होता है, ताकि इन दोनों को आपस में रिलेशनशिप स्ट्रांग बने. पहले एज ए थेरेपिस्ट आप खुद वो स्किल्स करते हो बच्चे के साथ, फिर वो आप पेरेंट्स को सिखाते हो, फिर यू मेक श्योर कि पेरेंट्स को भी वो स्किल्स आ जाए टू डू इट विद द चाइल्ड. एंड लास्टली यू हैव टू टीच सेफ्टी टिप्स, जैसे मैंने अभी बताया. कुछ इस तरह का फ्यूचर में कुछ होता है तो हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू प्रिवेंट हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद द हार्म. ठीक है. अगर कोई भी आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा हो तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू एट दैट टाइम.
ठीक है, बच्चे से ये पूछा जाता है या पेरेंट्स से ये पूछा जाता है कि आपको कोई अगर अनकंफर्टेबल फील करा रहा होगा तो डू यू हैव एनी कोपिंग स्ट्रेटजीज, एनी कोपिंग स्किल्स। तो इस तरह से यू वुड नीड टू नो कि जो भी आपने सिखाया है वो अगले ने सीखा भी है कि नहीं सीखा। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, आप लोगों के हिसाब से प्रैक्टिस में से सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होगा या होता होगा जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है? In vivo exposure. इन विवो एक्सपोजर, बिल्कुल सही। मास्टरी ऑफ ट्रॉमा रिमाइंडर्स, बिल्कुल सही। एनीवन एल्स? और आप लोगों के हिसाब से क्या मुश्किल आपको फील हो रहा है इसमें से? बस ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आई थिंक यू वुड बी गुड टू गो। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Alright, now coming to the last disorder, that is OCD. Well, OCD is also very, very commonly seen, unfortunately, and people are still not educated about it. They still have a lot of doubts about it. कि OCD जो है ना, is just about cleaning. OCD is just about keeping your room neat or no, हर चीज आप बस organize रखते हैं. But OCD is much, much, much more than that. ठीक है, they have obsessions, they have compulsions, they're not able to sleep, they perform rituals again and again. जी Risa. Okay, so can I share? I had this patient with I had this client who had severe OCD since she was 16 years old. Or uske baad, now she is 40. I met this client when I was doing my clinical rotation. So एक minute, just give me a minute. तो उनको उसके साथ में स्किज़ोफ्रेनिया भी कोमॉर्बिड आ रहा है। तो उसके अंदर उनको क्या होता है, शी हैज दीज एक्सट्रीम ऑब्सेशंस कि उनकी जो नमाज है वो नहीं हो रही है, या जो वो वजू कर रही हैं या जो वो पाक हो रही हैं वो नहीं हो रहा है, हर चीज गंदी है, हर चीज बुरी है। सो शी वुड लाइक स्पेंड 10 आवर्स अ डे, वो सिर्फ एक नमाज पढ़ने में लगा देंगी। वो जोहर पढ़ रही हैं तो वो रात हो जाएगी, रात के 12 बज जाएंगे और वो जोहर पढ़ती रहेंगी। वजू करना स्टार्ट करती हैं, पूरी टंकी का पानी खत्म हो जाता है और उनका वजू नहीं होता था। वो नहाना स्टार्ट करती थी, लाइक घंटों गुजर जाते थे और टंकी पानी खत्म, और लेकिन उनका नहाना खत्म नहीं था। और जब पानी खत्म हो जाता था सो शी वुड स्टार्ट गेटिंग एजिटेटेड, और उनके अंदर एंग्जाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि मैं तो पाक ही नहीं और पानी नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा उनके इमोशनल आउटबर्स्ट होना शुरू हो जाते थे। इसके अलावा वो घर पे कुछ खाना नहीं खाती थी क्योंकि रेड कलर में ऐसा कुछ सब्सटेंस है और ये वाले में ऐसे कोई है, तो वो किसी के भी हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती थी। तो उनके लिए घर में रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि हर पेरेंट्स हैड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हर, क्योंकि वो घर में रह ही नहीं पा रही थी। एंड शी, और अगर आप उनसे मिलेंगे तो शी वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल गर्ल, लाइक शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। यू वुड मीट हर और आपको नहीं लगेगा कि इस बंदी के साथ कुछ ऐसा मसला है। बट इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अर पेरेंट्स टू कीप हर एट होम, तो वो उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करा दिया था उनको। So you can clearly see now कि how serious OCD is, और वो कितना ज्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। डेफिनेटली no one would want to be a part of this, no one would want to struggle with these things, but सबसे पहली चीज आती है acceptance, acknowledging कि हाँ ठीक है, this is something that is happening and it's affecting your life, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग को वो चीज अफेक्ट करी है। इसको एक्नॉलेज करना भी बहुत important है और बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच Risa for sharing that with us. Alright, let's move towards the techniques now. The first one is exposure and response prevention therapy. I believe this is one of the most golden standard treatment for OCD. ठीक है, you expose the client to their fear, whatever fear they have, without allowing the ritual, जो वो compulsion जो उनको हो रही होती है, so that उनका जो दिमाग है उसको बेसिकली हमने ये रियलाइज कराना था कि nothing bad is going to happen if you will not do this. ठीक है, they have this constant fear that something bad will happen if I don't do that. If I don't wash my hand 3 times, 4 times, 5 times, something bad will happen. So then I have to do it. ठीक है, अच्छा मैंने इसी के ही आई थिंक नेक्स्ट में, हाँ जी,
ऑलराइट, ये बेसिकली 3 चीजों में डिवाइड है, एक्सपोजर, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एंड देन द आउटकम। एक्सपोजर क्या है? दैट यू ग्रेजुअली एक्सपोज द क्लाइंट एंड थॉटफुली टू ट्रिगर्स एट अ डूएबल पेस। आपने क्लाइंट को एक्सपोज कराना होता है जो भी उनके फियर्स होते हैं, लेकिन कंट्रोल वे में, ग्रेजुअली में, और थॉटफुली का मतलब ये कि यू आर ऑल्सो फुली प्रेजेंट विद द क्लाइंट एट दैट टाइम। ठीक है, मेक श्योर करें कि जो भी एक्सपोजर करवा रहे हो वो ओवरवेलमिंग ना हो, डूएबल हो, क्लाइंट कंफर्टेबल हो। रेट करवाएं पहले क्लाइंट से कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका उसी उनसे उनका ट्रिगर होता है और कौन सी चीजों से नहीं होता। जिनसे नहीं होता उनसे पहले स्टार्ट आपने करवाना है। ठीक है, बिकॉज पर्पस क्या है एक्सपोजर का? टू बेसिकली ट्रेन योर ब्रेन इन अ वे दैट जो भी इसका आउटकम होगा वो ना ही इतना बुरा होगा जितना मुझे लग रहा है, और हो सकता है वो शायद कुछ भी ना हो उसमें से जो आउटकम मैंने सोचा होगा। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन क्या है? दिस पार्ट बेसिकली फोकसेस ऑन द फैक्ट कि अगर आप वो कंपल्शंस नहीं करते हो या वो जो अवॉइडेंस बिहेवियर जो आप यूज कर रहे हो, दे आर दे उस टाइम पे हमें लग रहा है कि दे आर हेल्पिंग अस टू रिड्यूस द एंजाइटी, बट दे आर बेसिकली कॉजिंग मोर ट्रबल। वो आपका ट्रबल बढ़ा रहा है। वो आपको उस टाइम पे तो आपकी एंजाइटी को वो कम कर देता है कि मैं हाथ गंदे हैं तो मैं 10 दफा हाथ धो लूंगा, मेरी एंजाइटी कम हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे तो इट्स हेल्पफुल, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म यही चीज आपको बाद में तंग कर रही होती है। दैट्स रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब उनके अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है, उनके कंपल्शंस क्या है? आस्किंग फॉर रीअश्योरेंस, वॉशिंग अगेन एंड अगेन, चेकिंग अगेन एंड अगेन। पहले उनके कंपल्शंस को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। ईआरबी में हम फोकस करते हैं कि वो जो इसकी जो कंपल्शंस हैं, जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो उसका हमने लेवल कम करना होता है कि अगर वो 10 दफा हाथ धोते तो हमने उसको कहना है कि तुमने अब सिर्फ 5 दफा धोना। 5 दफा धोते हैं फिर उसको कहना है कि तुम्हें सिर्फ 3 दफा करना है। ठीक है, इनिशियली द क्लाइंट फील्स वेरी अनकंफर्टेबल बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। वही बात है, पर्पस क्या है कि हमने अपने ब्रेन को ये सिखाना है, ये समझाना है कि यू कैन हैंडल द एंजाइटी। एंजाइटी इज नॉट बिगर देन यू। ठीक है, आउटकम डेफिनेटली, आउटकम क्या है कि हमने डिस्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करना होता है और न्यू हेल्पफुल वेज को आइडेंटिफाई करना होता है इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द ट्रिगर। अगर हमारे कंपल्शंस कंट्रोल हो गए तो हमारे ऑब्सेशंस भी कंट्रोल हो जाते हैं, और कंपल्शंस आर द रीजन जिसकी वजह से ऑब्सेशंस और स्ट्रांग होती जाती है और बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके क्या वैल्यूज हैं, आपके क्या गोल्स हैं, एंड टेल देम कि यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, नॉट अकॉर्डिंग टू द ओसीडी और द फियर ऑफ ओसीडी दैट यू हैव। एंड हमने उनको कोपिंग स्ट्रेटजी सिखानी होती है, हेल्दियर वेज ऑफ थिंकिंग, हेल्दियर वेज ऑफ बिहेवियर। कि उस टाइम पे एंजाइटी हो रही है तो फिर मैं क्या करूँ? वी हैव टू टेल देम अदर वेज एज वेल। अच्छा, लेट्स मूव बैक टू अदर टेक्निक्स। ठीक है, अच्छा, इसमें डीप ब्रीथिंग का हमें पता है, पीएमआर, एबीसी, वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो और इन्फ्रेंस बेस्ड सीबीटी का मैं बता देती हूँ। अच्छा, इन्फ्रेंस बेस्ड सीबीटी क्या है? इन्फ्रेंस बेस्ड सीबीटी इज बेसिकली focuses on how the trigger started. Alright, so we basically have to focus कि how the fear started. हमने उसकी core के ऊपर बात करनी होती है कि what your obsession definitely started with the thought what if. ठीक है, what if this will happen, what if that will happen, and not real evidence or not something that you can say कि नहीं ये हुआ था तो वो हुआ था. It's mostly in your mind, in your thinking कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा. ठीक है, what if I hit someone with my car and what if I didn't notice. हो सकता है मैंने किसी को गाड़ी से मार दिया, मुझे नहीं पता चला. तो ये आई उसको कहते हैं ICBT. ICBT basically helps us to differentiate what's imagination and what's real. इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. यू टेल देम कि व्हाट्स द एविडेंस बिहाइंड दिस एंड देयर इज मोस्टली नो एविडेंस. यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ दिस विल हैपन एंड व्हाट इफ दैट विल हैपन. ठीक है, और मूविंग टुवर्ड्स वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो. इसमें आपकी जो भी कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है उसके पहले हमने उस चीज को आइडेंटिफाई करना था कि व्हाट आर योर कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग. अगर मैंने नमाज सही से नहीं पढ़ी,
something bad will happen, what will happen, my family will die, I will lose I will lose my grade, I will fail my exam. We have to identify कि क्या उसके realistic outcomes हैं. ठीक है, fear ये है कि सही से नमाज नहीं पढ़ी, कोई ना कोई किसी की डेथ हो जाएगी. वर्स्ट केस क्या होगा कि वाकई में किसी की डेथ हो जाएगी. बेस्ट केस क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होगा. और रियलिस्टिक क्या है, nothing happened, it was just your anxiety. And thinking about it did not help you in anything. Just because you were thinking about it कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, क्या ऐसी वाकई हुआ? Did something like that ever happened? ठीक है. और मोस्ट केसेस में उन्होंने वो चीज की. मैं वही कहते हैं कि हमने ये वो चीज होने ही नहीं दी ना. मैं नमाज 10 दफा पढ़ती रही कि अगर मैं सही से नहीं पढ़ूंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा. अच्छा जी, कुछ बुरा हुआ. कुछ बुरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने 10 दफा जो नमाज पढ़ ली थी. ठीक है. द नेक्स्ट टाइम आज टाइम कि आप एक ही दफा पढ़ के देखें और फिर मुझे बताएं कुछ बुरा होता है कि नहीं होता. एंड डेफिनेटली ये बहुत उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, बट वी नीड टू आस्क देम टू डू दीज थिंग्स. अच्छा, उसके अलावा ये सारी टेक्निक्स जो है ना वो हमने वही सेम टेक्निक्स है, बस यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स थॉट्स, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स बिहेवियर एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स गोल्स. जो भी आपने सीबीटी की टेक्निक करवानी है, जो भी टेक्निक करवानी है, मेक श्योर टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि क्लाइंट के गोल्स क्या हैं. ऑलराइट, लेट्स समराइज इट. बेसिकली डिप्रेशन में क्या दो मेजर चीजें हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड बिहेवियरल एक्टिवेशन. जीएडी में क्या है, वरी मैनेजमेंट विद रिलैक्सेशन. पैनिक डिसऑर्डर में इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर हम करवाते हैं विद कोपिंग स्टेटमेंट्स. पीटीएसडी में टीएफसीबीटी है विद एक्सपोजर थेरेपी. एंड फोबियाज में भी एक्सपोजर थेरेपी का ही काम होता है, जो हमने पहले एक्सपोजर थेरेपी जब मैंने आपको सिखाई थी तो फोबियाज के उसमें दिखाई थी. एंड लास्टली ओसीडी में हम ईआरपी करवाते हैं. So this was the summary. And do you have any questions regarding, because now I will be telling you about the assessment, the assignment that you have. Ji, Irsa, do you want to say something? All right. So let's move forward. Ji, Aisha wants to say something. Ji, Aisha. I had a question about PTSD, TFCBT specifically. कि उसमें how do we explain trauma to children? Excellent, very good. पहले तो मुझे ये बताएं, आयशा, how would you explain trauma to adult person? एक adult को कैसे सिखाएंगे, समझाएंगे trauma क्या होता है? Probably कि उनके जो पास में जो हुआ था उनको इफेक्ट किया था काफी ज्यादा. पास में जो हुआ था उनको काफी अफेक्ट किया था and they might not be acknowledging it. अच्छा, ठीक है. अब बच्चे को भी हम इसी तरह इससे सिखाते हैं क्योंकि बच्चे को इस चीज की बिल्कुल भी आप कह लो नॉलेज नहीं होती है, इनसाइट नहीं होती. तो हम, क्योंकि ट्रॉमा एक बहुत, वैसे देखा जाए तो ट्रॉमा इज समथिंग वेरी बिग, अ बिग टर्म. व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग द ट्रॉमा टू चाइल्ड, वी टीच देम कि जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ स्केरी होता है, समथिंग दैट अपसेट्स यू, इट मेक्स यू फील रियली बैड इनसाइड एज वेल. उस चीज के खत्म होने के बाद भी आप किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, उस टाइम पे तो यू वर फीलिंग बैड, बट वो चीज जब खत्म हुई तो उसके बाद भी यू वर फीलिंग बैड अबाउट इट. सो द इंसिडेंट इज ओवर, बट नाउ योर ब्रेन एंड योर बॉडी रिमेंबर दैट स्केरी थिंग. और अब उस स्केरी थिंग की वजह से नाउ यू आर फीलिंग सैड, नाउ यू आर फीलिंग एंग्री, नाउ यू आर फीलिंग नर्वस. बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि अब वो चीज खत्म हो गई है. अब आपको डरने की जरूरत नहीं है. क्या कभी और कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इतना डर गए हो कि बाद में भी आपको डर लगा हो? इंसिडेंट तो खत्म हो गया, लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन बाद में भी आपको खौफ आ रहा हो. ठीक है, इस तरह से हम बच्चे से बात करते हैं. आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बैठे बैठे डर जाते हो, कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ अपसेटिंग होने वाला है, ठीक है, आपको कभी ऐसा लगता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, यू आस्क दीज क्वेश्चंस विद द चाइल्ड. You explain things in a very, very simple language, very layman person की तरह आप उनसे बात करते हो. जी, अच्छा बेटा, प्लीज गो ओवर.
Any other question? समझ आया? I think it's clear. Grounding techniques का बता दें. हाँ, चलो let's do a grounding exercise. चलो let's do. Anyone would like to volunteer? Ji, Merin, you want to say something? I just wanted to ask about cognitive restructuring. You asked us to go through the slides before. So while I was going through all the slides and everything, I was wondering, how do you avoid or how do you prevent when you're teaching cognitive restructuring and reframing thoughts and everything to the client, how do you make sure that all of that does not turn into intellectualization? You know, because I feel like it's very possible that the client becomes too focused on just monitoring their thoughts and making sure that they're just having productive and healthy thoughts. And they've become so obsessed with it that they forget the emotional aspect of it. And eventually it becomes really overwhelming for them. You know, like they feel like, oh, I have to monitor my thoughts constantly. I have to make sure I'm having the right thoughts, the good thoughts, the productive ones. And like, how do you make sure that the process of reframing their thoughts becomes a natural and integrated way of thinking and not a rigid and overwhelming thought monitoring process? ठीक है, perfect. Thank you, Merin, for asking that question. Very true, very something that I have also heard asking my clients about it, that initially it does feel like something that you are forcing yourself to do. It's not coming out naturally. What we have to do, we have to make sure to add the emotional element as well. Whatever they are thinking, how is it impacting your emotions? Okay, if I am with a friend or with a person and I'm thinking that they are not talking to me because they don't like me, but then eventually they have to reframe this thought as well. Okay, no, it's not like that. Maybe I'm just over exaggerating, or maybe it's not, whatever I'm thinking is not right. Ask them ki during this entire reframing, how your emotions change. When you were thinking that this person is ignoring me because they're not talking to me because they don't like me, at that time, how were you feeling? And when you reconstructed your thought to the positive one, what change in your emotions came? And जब वो ये कहेंगे कि हाँ, emotions में I felt a lot of change. So now then you can tell that this is the whole purpose behind it, is to make you feel good about yourself. Is to make you feel stable and positive even in the situations which are not in your control. वो आपकी फ्रेंड आपसे बात कर रही है कि नहीं करी, that's not in your control and you cannot force that. But what you are thinking about the situation is in your control. And Merin, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी. I have this client जब भी मेरे साथ है, it's been काफी टाइम हो गया उनके साथ मैं CBT करवा रही हूँ, like 10 above sessions हो गए. तो initially she said that it's very difficult for me, I'm not able to reconstruct my thought, but now alhamdulillah she has come to the point कि अब मुझे like I don't have to think, like अपने आप को force नहीं करना पड़ता to think, it just comes out naturally. Like I know if I'm thinking this negative point, then eventually I have to replace it. Why? Because it impacts the way I feel. And we all want to think or do things which makes us feel good. So you have to tell them the purpose behind reconstructing these thoughts, and do not be like a robot or do not take this as something very mechanically. Keep the emotions element in it, that would keep them alive as well. All right, thank you, Mary. Ji, one person to volunteer, let's do grounding technique. Anyone would like to volunteer? जिसके साथ मैं भी grounding technique कराने लगी हूँ. I think it's better कि कोई volunteer कर ले, फिर ही मजा आएगा. Otherwise, you will not be able to enjoy it. Ji, Huda, would you like to volunteer yourself? Yes. All right, perfect. अच्छा, ये ना मैं जरा slides भी बंद कर देती हूँ. And even though Huda has volunteered, but if there's someone else who would also like to do with us, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है?
All right, Huda, first of all, make sure that there are no distractions around you and you are. I cannot see you, Huda. My camera to on. If possible, turn on your camera so that I can also see how you are feeling, so that other can also experience it. All right, Huda, thank you so much for volunteering yourself for this exercise. We are going to take a minute. It won't take less more than 3 to 4 minutes. We are going to take a moment to basically ground ourselves in the present. Just know that wherever you are sitting, you are in a safe space right now, and we are going to help us feel where we are and be present in this moment. First of all, take a deep breath in, hold in for a few seconds, and breathe out. All right. Now, Huda, I want you to look around and just name 5 things that you can see. Take your time, it could be anything, but just 5 things that you can see. Straightener, a brush, a bucket, a bag, and adapter. All right. Would you like to share with us what's the color of the bag, or how does it look like? Black, It's black. What's the shape of the bag? so normal होती है, like एक bag की जो बड़ा वाला All right, bag the होता bag है. size. Yeah. All right, perfect, perfect. Thank you. Now, Huda, I want you to notice, is there any like 4 things around you that you can touch or feel? It could be anything, the texture of your clothes, anything about around you. Mattress, 4 things. Ji? mattress. Your shirt? No, mattress. Mattress. All right, mattress. Okay, And what else? phone, Phone. All right. clothes, Your clothes. hair. Your hair. Yeah. Perfect. Would you like to share what's the texture of your hair? Rough because I dyed them. All right. What's the texture of your clothes? Smooth. Like they're smooth. They are? Smooth. They are smooth. How does it feel when you touch them with your fingertips? They feel smooth. Yeah, it feels smooth. All right. Now I want you to focus around you and just listen to 3 sounds that you can hear. एक second. 3 sounds that you can hear. एक तो पंखे की आवाज आई जी बिल्कुल. और आउट ऑफ नोवेयर म्यूजिक चल गया था तो मैं वो सेट करी थी उसकी आवाज आई और बाहर अच्छा. से रैंडम शोर आ रहा. ठीक है. ठीक है. How does the sound of fan feels to you? Does it bother you or do you like it? Is it like a white background? How does it make you feel? The sound of the fan. Like it doesn't make me feel anything. Like, it's okay. ठीक चल रहा है. ठीक है. Part of your Yeah. routine. All right. The music. How was the music that you just heard? It was. I think it was some sad music. वो out of nowhere खुद ही चल गया था. अच्छा, ठीक है, perfect. Thank you for sharing that. All right, now notice 2 things that you can smell around you. Smell around तो I don't think so कुछ भी है but fragrance वगैरह वहाँ पे side पे पड़ा हुआ है perfume. तो उसको You smell can कर pick up the perfume, and if you cannot smell anything, you can, pick up something and smell it intentionally. Anything, maybe you can just smell your dress or smell anything around you. I did. Yeah. How was the smell? It's good. Yeah, it was good fragrance.
Yeah. All right. Yes. Any other? Because we have to mention two things. I have this fixer, makeup fixer, उसकी भी smell है, but उसकी थोड़ी जो दूसरा वाला like जो mist के उससे थोड़ी like कम sweet smell है उसकी, but उसकी भी smell है. अच्छा, दोनों अच्छी स्मेल है. Yeah, yeah. ठीक है. There's no pinching or bad smell. कोई आसपास इस No. तरह की कुछ. ठीक है, perfect. Lastly, I want you to notice one thing that you can taste. Maybe you can have a glass of water or eat something and just feel the taste in your mouth. इस वक्त तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है. अच्छा, maybe you can imagine a taste of a chocolate in your mouth or a fruit. मैंने अभी like last अभी खाया था, आड़ू खाया था. हाँ, ठीक है. कैसा उसका कैसा टेस्ट था? It was like it was not sweet and it was not sour, so like normal था. All right, perfect. Then now you have actively sense, you have intentionally activated all your five senses, and now you are fully present in the ground. I want you to take another deep breath in, hold for a few seconds, and you can breathe out. Now you can feel your body where you are sitting or standing, and just know that wherever you are safe, you are here, and the moment that you are in, it's in your control, and we all are part of this moment with you. Thank you so much for being with me, being with us, and for doing this exercise. This is a very quick, short exercise जो मुझे बहुत effective लगती है, और आपको these are the things that we don't normally notice around us, but when someone asks us कि नहीं आप smell करें, आप touch करें, you intentionally do it. Huda, would you like to share your experience? How was it? I feel like कि when I did it तो मुझे like बहुत ज़्यादा ऐसे feel हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा like present हूँ, like I forgot everything else. मेरे दिमाग में कोई distraction नहीं आई random. I was कोई just negative thought thinking नहीं about, आया yeah, होगा. नहीं आए. That's the whole purpose कि when you become fully aware of yourself, तो तब कोई negative thought नहीं आती. And Ruksh ने कहा है, I think Rukshe Ibadat said that she also enjoyed it. I was looking at you, Rukshe, when you were doing it. तो मैं देख रही थी, आप वाकई enjoy कर रही थी. So thank you so much. This was a quick exercise. अब ये है कि ये exercise खुद पे भी करें और फिर ही आप अपने client के साथ करें. And trust me, they would not just feel connected to the ground, they will feel connected with their therapist as well. उनकी एक थेरेपिस्ट के साथ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है. दे लाइक व्हाट द थेरेपिस्ट इज सेइंग एंड देन दे स्टार्ट फॉलोइंग इट. वो आपसे फिर कहते हैं आप दोबारा एक्सरसाइज करवाएं, मैंने बहुत एंजॉय किया था. फिर आई टीच देम कि अब आपने ये नेक्स्ट टाइम खुद करनी है. You have to do this exercise on your own and then tell me that how you were feeling. All right, now let's move to the last part, and that is the quick assessment that I have planned for you. Let me share the screen. All right, so I would be sharing this with you. Just giving you a quick, आप समझ लें, just giving you a quick review about it. एक minute. All right, I am, आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, और zoom in करूं? चलो zoom in करो. ठीक है, so this is the case scenario that you all have to work on. 27 years old, Sara, graduate student in clinical psychology. These are her presenting complaints. ठीक है, these are the statements that she has stated. आप लोगों ने क्या करना है? First of all, you have to write down the problems that you can clearly see. Make sure to write in your own words what are the psychological issues that are most prominent over here.
Then you have to choose the CBT model application. Choose one specific situation and then complete the CBT model. जिसमें situation, thoughts and emotions, behaviors and physical sensations आपने लिखने हैं. Then you have to identify 3 unhelpful automatic thoughts Sarah is experiencing, and then explain why each thought is considered as unhelpful or distorted. अच्छा यहाँ पे ना also mention the type of distortion. ठीक है. अच्छा, then we have core beliefs and assumptions. 1 or 2 possible core beliefs आपने लिखने. ठीक है. Cognitive restructuring आपने करनी है. ठीक है. Balanced thought लिखना है. क्या evidence हो सकता है to help Sarah support this thought, and then reflection. How might developing awareness of our thoughts and their impact help Sarah begin to feel better? And what challenges may arise when introducing CBT to Sarah in the early stages of therapy? Length 2 to 3 page, type approximately 100 to 1000 words. इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 500 to 800 words. ठीक है. 2 pages, 2 to 3 page डिपेंड करता है. ठीक है. ये फॉर्मेट आपने लिखना है. You can submit as a Google Doc or PDF. 15 September is the due date. अच्छा, अब ये है कि after this submission, ठीक है, I would be sharing a Google form with you जहाँ पे आपने अपना full name, date of joining, homework all done, all classes attended, अपना email address लिखना है क्योंकि ये मैंने forward करना है for the certification. ठीक है. It's 15 September ड्यू डेट है, बट आप उससे पहले भी कर लेंगे तो दैट्स ऑल्सो फाइन. मैं गूगल फॉर्म जो शेयर करना है वो मैं साथ ही आपके कर दूंगी. ठीक है. परफेक्ट. एंड ऑन दैट नोट we have to say goodbye, even though I don't want to, because I absolutely enjoyed this class. Google form में I will also be adding the feedback point जहाँ पे आप अपना feedback भी share कर सकते हैं. And if there is any other topic or course or therapy that you would like to take, you can also let me know. I would definitely be coming up with something new, कोई new program भी लेकर आऊंगी. But you guys, I would love to have your suggestions as well. ये शेयर कर दे होमवर्क ग्रुप में. जी बिल्कुल. स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग्स, होमवर्क, आई वुड शेयर एवरीथिंग. आई विल एक्चुअली मिस एवरीवन हियर. Likewise, Mary. I loved seeing all of you. I loved talking to each one of you. It was a wonderful experience. And thank you so much for being part of this. I hope that you are leaving with a lot of new information and new learning things. I've tried my best. If I were not fully equipped to that level, apologies for that, but you know, I was always looking for this class and I was always doing my homework. And पहले खुद भी पढ़ना होता है, फिर ही आप अगले को पढ़ा सकते हो. So I totally enjoyed this class. Thank you, everyone. I was also looking forward. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. Thank you.